वो नोट करें। लिखिएगा, डॉबरिनर्स क्लासिफिकेशन फेल्ड टू Dobryner's classification failed to Dobryner's classification failed to classify all the then known elements, all the then known elements, then known का मतलब उस टाइम जो जो एलिमेंट्स हमें पता थे, failed to classify all the then known elements, all the then known elements in the form of triads of elements all the then known elements in the form of triads of elements, in the form of triads of elements having similar chemical properties. Having similar chemical properties, तो उस टाइम जितने भी एलिमेंट्स पता थे उन सारे के सारे एलिमेंट्स को डॉबरिनर जो है वो क्लासीफाई नहीं कर पाए उन ट्राइड्स के हिसाब से, जैसा उन्होंने बताया था कि एक ट्राइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। उसके साथ साथ उन्होंने ये बताया कि उनमें जो मिडल एलिमेंट होगा उसका जो एटॉमिक मास होगा वो बाकी के दो एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के अरिथमेटिक मीन के बराबर होगा। तो ऐसा वो क्लासिफिकेशन और कर नहीं पाया जाता। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, डॉबरिनर could identify only three triads. Dobriner could identify only three triads from the elements known at that time. Triads from the elements known at that time. Full stop. So his classification of elements was not much successful. उसका जो क्लासिफिकेशन था वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक है, अच्छा इसके बाद नोट करें न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। Newland's law of octaves. लिखिएगा, according to the Newland's law of octaves,
According to the Newland's law of according to the Newland's law of octaves, when elements are arranged in the order of when elements are arranged according to the Newland's law of octaves, when elements are arranged in the order of increasing atomic masses, are arranged in the order of increasing atomic masses, are arranged in the order of increasing atomic masses, the properties of the eighth element the properties increasing atomic masses, the properties of the eighth element, the properties of the eighth element, ब्रैकेट में लिखिए starting from a given element, starting from a given element, bracket close, are a repetition of the properties, are a repetition of the properties, are a repetition of the properties of the first element, of the first element, of the first element. फिर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की एक टेबल थी, वो टेबल बना रहा हूँ यहाँ मैं नीचे। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट एंड निकल, कोबाल्ट एंड निकल, कॉपर, जिंक, यूट्रियम, इंडियम, आर्सेनिक, सेलेनियम। ब्रोमीन, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, ब्रोमीन, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, सेलेनियम and lanthanide, Ce and La, selenium and lanthanide, zirconium, dash dash।
इस तरीके से सारे एलिमेंट्स जो हैं वो अरेंज करे गए थे। सर ये लास्ट रो में जो आरबी है वो कौन सा एलिमेंट है? रुबिडियम। नोट करिएगा, इट हैज एक्चुअली बीन फाउंड दैट it has actually been found that all the three elements lithium, sodium and potassium, all the three elements lithium, Na, sodium and potassium K possess similar chemical properties properties. Also, the elements beryllium, magnesium and calcium, beryllium, magnesium and calcium, beryllium, magnesium and calcium possess similar chemical properties. Possess similar chemical properties. तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ये कहता है कि भाई अगर किसी भी, यहाँ पर क्योंकि लिखा हुआ है देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, अगर एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज करा जाए, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एट्थ एलिमेंट, और ब्रैकेट में स्पेशली लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन एलिमेंट, मतलब किसी एलिमेंट से जिससे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसको मुझे फर्स्ट एलिमेंट मानना है, ठीक है, आर रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिथियम को फर्स्ट एलिमेंट मान लेता हूँ तो आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसका जो स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन एलिमेंट लिथियम को फर्स्ट मानते हुए जो एट्थ एलिमेंट है वो है सोडियम, सोडियम को फर्स्ट मानते हुए जो एट्थ एलिमेंट है वो आएगा पोटेशियम। तो ये जो तीनों के तीनों हैं एलिमेंट्स, इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिमिलर हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक ग्रुप और ले लिया गया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो इनकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो ये कहा गया, कोई भी ले लीजिए, हाइड्रोजन ले लिया तो हाइड्रोजन के बाद इसको अगर 1 मान लें तो 8th पोजीशन पर फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, तो इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। मैं अभी चौथे तक क्यों नहीं पहुंच रहा हूँ वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इसमें ये देखा गया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में, न्यूलैंड ने ये बताया कि उस टाइम जितने भी एलिमेंट्स थे जो अवेलेबल थे, तो न्यूलैंड के टाइम तक ये सारे एलिमेंट्स अवेलेबल थे, इन सबको उसने इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद में उसने ये समझाया कि स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन एलिमेंट एवरी एट्थ एलिमेंट हैज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एज द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, ये उसने समझाया।
अब इसके बावजूद भी कुछ कमियां रह गई, कुछ लिमिटेशंस रह गई, तभी तो ये वाला जो क्लासिफिकेशन था ये भी फ्लॉप हुआ। फिर आगे दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन आया, तो नोट करेंगे आगे आप न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये मिटा रहा हूँ इस तरफ से सारा। Newton's law of octaves, however, gave a very important conclusion. However, gave a very important conclusion. However, gave a very important conclusion that there is some systematic relationship between that there is some systematic relationship that there is some systematic relationship between the order of atomic masses between the order of atomic masses and repetition of properties of elements and repetition of properties of elements and repetition of properties of elements. But it also had the following limitations. इसकी भी कुछ limitations थी. Limitations मतलब कमियां थी कुछ. फर्स्ट लिखेंगे पहली जो इसकी लिमिटेशन थी, it was applicable to the classification of elements classification of elements. It was applicable to the classification of elements up to calcium only. Up to calcium only. पहला लिमिटेशन ये था. इसीलिए यहीं तक बताया बस. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसीलिए बस यहीं तक बताया और इसके बाद की हमने जिंक को, स्ट्रॉन्शियम को इसमें ऐड नहीं करा. ठीक है,
तो कुछ चेक करने के बाद पहले पहले ही देखा गया हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, बहुत बढ़िया, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज मिलती है। या पहले एर्थ एलिमेंट ही चेक करते गए, हाइड्रोजन फ्लोरीन से मिलता है, लिथियम सोडियम से, बेरिलियम मैग्नीशियम, ये इससे सारे मिलते गए। लेकिन धीरे धीरे करते करते जब हम कैल्शियम तक पहुँचे तो तब तक लगने लगा कि भाई शायद सब कुछ होगा ही है तो सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन कैल्शियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स थे उन पर फिर वो एप्लीकेबल हुआ ही नहीं। ठीक है, मतलब बोरोन, एल्यूमिनियम दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन एल्यूमिनियम और क्रोमियम की केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं निकली। क्यों? वो कैल्शियम के आगे फ्लॉप हो गया, कैल्शियम के आगे वो चल ही नहीं पाया। ठीक है, ये पहली लिमिटेशन थी। दूसरी लिमिटेशन देखिएगा न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की। Newland assumed that only 56 elements existed in nature. उसका नाम न्यूलैंड्स था पूरा। न्यूलैंड्स assumed that only 56 elements Newlands assumed that only 56 elements existed in nature. Only 56 elements existed in nature. And no more elements would be discovered in the future. And no more elements would be discovered in the future. No more elements would be discovered in the future. न्यूलैंड ने ये कहा था कि इस टाइम सारे के सारे सिर्फ 56 एलिमेंट्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। इतना तो ठीक था। उसके बाद उसने ये बोला कि आगे फ्यूचर में कोई और एलिमेंट्स डिस्कवर भी नहीं होंगे। ठीक है, यहीं वो गलत बोल रहे हैं, तो नोट कीजिएगा। बट लेटर ऑन सेवरल न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, but later on several new elements were discovered whose properties did not fit whose properties did not fit into Newland's law of octaves. तो पहली कमी तो ये थी कि उसका जो ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था, उसके आगे इसने काम करना बंद कर दिया। मतलब उसके आगे के एलिमेंट्स जो हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सुंदर नहीं निकली। तो यहाँ पर पहली कमी थी। दूसरी कमी ये थी, न्यूलैंड ने ये बोला कि नेचर में सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही एग्जिस्ट करते हैं एंड देयर विल नॉट बी एनी न्यू मोर एलिमेंट विच विल बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर। तो ये भी बोला था, लेकिन कुछ समय बाद और एलिमेंट्स भी डिस्कवर हुए और उन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज थी वो कहीं से भी न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के हिसाब से फिट नहीं बैठती थी। तो ये दूसरा लिमिटेशन हुआ। थर्ड लिखेंगे। थर्ड है, in order to fit elements into this table, in order to fit elements into his table, Newlands
Put even two elements together in one slot. Put even two elements together in put even two elements together in one slot, and that too in the column of unlike elements, and that too in the column of unlike elements, that too in the column of unlike elements, having very different properties, having very different properties, having very different properties. For example, the two elements cobalt and nickel, आपने देखा उसमें टेबल में कोबाल्ट और निकल को एक साथ रख दिया गया. The two elements cobalt and nickel were put together in just one slot. Were put together in just one slot. Were put together in just one slot. Comma, and that too in the column of elements like, and that too in the column of elements, and that too in the column of elements like fluorine, chlorine, bromine. Column of elements like fluorine, chlorine and bromine. Fluorine, chlorine and bromine, which have very different properties from these elements, which have very different properties from these elements, which have very different properties from these elements, जिनकी प्रॉपर्टीज इन एलिमेंट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी. तो फिर से देखते हैं, पहला जो लिमिटेशन था, पहला लिमिटेशन ये था कि सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल हो पाया, उसके आगे नहीं लग पाया. दूसरा लिमिटेशन ये था कि न्यूलैंड ने ये कहा कि ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड इन नेचर एंड देयर विल नॉट बी एनी न्यू एलिमेंट व्हिच वुड बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर. लेकिन लेटर ऑन ये देखा गया कि बहुत सारे नए एलिमेंट्स भी डिस्कवर हुए और वो भी न्यूलैंड्स के लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में फिट नहीं बैठे, उसकी टेबल के हिसाब से फिट नहीं बैठ पाए. फिर तीसरा जो लिमिटेशन था, उसने कैसे भी करके एलिमेंट्स को अपनी टेबल में फिट बिठाने के लिए कुछ ऐसा काम भी करा कि दो एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट में डाल दिया. और फिर दिमाग में ये आता है कि जब दो एलिमेंट्स को एक स्लॉट में डाला है तो शायद उन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी. तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम नहीं थी. मोरोवर उसको उस कॉलम में डाला गया जहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, जैसे कोबाल्ट और निकल था, तो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन वाले कॉलम में डाला गया और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन से भी मिलती जुलती नहीं थी, अलग थी, उनसे काफ़ी डिफरेंट थी. तो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए न्यूलैंड्स. ठीक है, ये इसका तीसरा लिमिटेशन था. तीसरे लिमिटेशन के बाद में देखिए फोर्थ लिमिटेशन भी था एक. फोर्थ लिमिटेशन नोट करें. फोर्थ है iron element Fe which resembles cobalt and nickel elements in properties.
Fe iron element Fe which resembles cobalt and nickel elements in properties, which resembles cobalt and nickel elements in properties was placed far away from these elements, was placed इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा, नीचे लिख रहा हूँ उसको, या इधर लिख रहा हूँ, was placed far away from these elements. फार अवे क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि एवरी एट्थ एलिमेंट उसकी प्रॉपर्टी रिजेंबल करनी चाहिए एक दूसरे से, लेकिन आयरन बिल्कुल उधर राइट कॉर्नर पर और बिल्कुल इधर लेफ्ट कॉर्नर पर कोबाल्ट एंड निकल है, तो बिल्कुल प्रॉपर्टीज उनकी जो है वो सिमिलर है, बहुत रिजेंबल करती है, तो उनको तो नज़दीक होना चाहिए था, और उनको जो टेबल है टेबल में बहुत बहुत दूर रखा गया। तो ये चार इसकी लिमिटेशन थी। न्यूलैंड का अगर लॉ ऑफ ऑक्टेव आता है तो न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव एक तो आपको एक्सप्लेन करना होगा, डेफिनेशन उसकी एक टेबल बनानी होगी और ये चार लिमिटेशन, इसके अलावा और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो था, इसके बाद नेक्स्ट आता है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो इसमें कुछ कमियां थी, इस वजह से नया फिर नई पीरियोडिक टेबल आई, तो लिखेगा मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में लिखें मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में क्या था कि लिखिएगा मेंडलीव found that Mendeleev found that when elements are arranged in the order of elements are arranged in the order of increasing atomic masses, in the order of increasing atomic masses, the elements with similar properties occur at regular intervals. The elements with similar properties occur at regular intervals.
occur at regular intervals. In the classification of the then known elements, in the classification in the classification of the then known elements, Mendeleev was guided by two factors of the then known elements. Mendeleev was guided by two factors. Mendeleev was guided by two factors. First है increasing atomic masses. First लिखेंगे increasing atomic masses increasing atomic masses. Second लिखेंगे grouping together of elements having similar properties. Grouping together of elements having similar properties. Having similar properties. Having similar properties. उसके बाद एक पॉइंट लिखेंगे in order to make sure, नोट करके लिखना इसको इम्पोर्टेंट है. In order to make sure that the elements having similar properties that the elements having similar properties fell in the same vertical column. Having similar properties fell in the same vertical column, comma, Mendeleev left some gaps in his periodic table. Mendeleev left some gaps in his periodic table. Mendeleev left some gaps in his periodic table. ठीक है, इतना नोट करिए. बस मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ जरा. इसकी टेबल देखते हैं.
चलिए जी, इसके बाद आप मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बनाएंगे। तो मेंडलीव ने एक काम बहुत अच्छा करा था कि उसने कुछ पहले से उसको प्रेडिक्शन था कि आगे आने वाले टाइम में कुछ नए एलिमेंट्स भी डिस्कवर हो सकते हैं। तो उसने क्या करा कि उसने अपनी जो पीरियोडिक टेबल थी, अपनी पीरियोडिक टेबल में उसने कुछ गैप्स छोड़ दिए थे नए एलिमेंट्स के लिए। उसने देख लिया था कि न्यूलैंड से जो गलती हुई थी वो मुझे नहीं करनी है। तो अब इसकी टेबल देखिएगा। टोटल 8 ग्रुप बन गए। ठीक है, जो ये वर्टिकल क्लासिफिकेशन होता है, वर्टिकल क्लासिफिकेशन को बोलते हैं ग्रुप, और जो हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन होता है उसको बोलते हैं पीरियड्स। पीरियड्स ऐसे हैं ऊपर से नीचे। ये हो गया हमारा 1 2 3।
ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स को कुछ इस तरह से लिखना है, जैसे इन्होंने ऑक्साइड्स में ऐसे लिखा है R2O, तो इसको मानो R2O1। अगर किसी के आगे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो समझ लो उसके आगे 1 लिखा हुआ है, इसको लिखना है R2O1। फिर इन्होंने ग्रुप सेकंड में यहाँ पर ऑक्साइड में लिखा हुआ है RO। RO को आप क्या लिखेंगे, R2O2, क्योंकि 2 1 2, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर अगला इन्होंने लिखा है R2O3। फिर अगला इन्होंने लिखा है RO2, आप उसको लिखो R2O4। फिर अगला है R2O5। फिर अगला RO3 लिखा है, आप उसे लिखोगे R2O6। फिर अगला R2O7, बुक में लिखा है RO4, आप उसको R2O8 लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ना याद करने में आसानी रहेगी। आपको बस ये फिक्स करना है, अच्छा R क्या है, R यहाँ पर कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, वो एलिमेंट कौन सा होगा वो हम पीरियोडिक टेबल में से निकालेंगे। तो R2O1, R2O2, R2O3, R2O4, R2O5, R2O6, R2O7 और R2O8, ये हो गया। ये करने के बाद में फिर देखिएगा जो हाइड्राइड है, हाइड्राइड किस तरह से होगा, उसमें आप लिखेंगे RH। RH मतलब RH1, RH2, RH3, RH4, RH1, RH2, RH3, RH4, ये हो गया। फिर वापस डिक्रीजिंग ऑर्डर, RH4 के बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर, RH3, RH2 और RH1। ठीक है, और ग्रुप 8 जो है उसको खाली छोड़ दो, ब्लैंक डाल दीजिए यहाँ पर, यहाँ कुछ नहीं। ठीक है, फिर पीरियड 1 में देखिए, पीरियड 1 में इन्होंने बोला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ लिख दिया 1.0, मतलब ये इसका एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का। उसके बाद है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। इनके एटॉमिक मास है 7, 9.1, 11, 7, 9.1, 11, 12, 14, 16, 19, 12, 14, 16 और 19। ठीक है, ये मैं आपको एक मतलब ये टेबल आपको बनाकर दिखा रहा हूँ, पूरी टेबल लर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बता दूंगा कहाँ करना है लर्न और कितना करना है। थर्ड में आप नोट करेंगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। 23, 24.3, 24.3, 27, 28.4, 31, 31, 32, 35.5। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना होता है, आप ये देखिएगा आगे 4th, 5th और 6th ये बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है कि ज़्यादातर केसेस में क्या देखा गया है कि मेंडलिन की पीरियोडिक टेबल वो आपको पेपर में दे देते हैं या नहीं देते कई बार। तो ये जो एलिमेंट्स है ना, ये क्लोरीन तक एलिमेंट्स जो है सफिशिएंट है। इसके बाद एक पोटेशियम आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है। तो कैल्शियम तक ही जनरली आपको याद करने के लिए मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा। उसके आगे का कोई एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं एलिमेंट के, उनके हम ऑक्साइड्स पूछने लगे या हाइड्राइड्स पूछने लगे तो इतनी टेबल बनाकर छोड़ दो। इसमें आपसे ये पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड कैसे बनेगा। तो मेंडलीव ही था जिसने बताया कि मैं कंपाउंड भी अब बनाना सिखाऊंगा आपको। तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड कैसे बनेगा, आर की जगह Al डाल दो, बस Al2O3, ये हो गया। सिलिकॉन का ऑक्साइड कैसे बनेगा, आर की जगह Si डाल दो, तो Si2O4, तो 2 2 4 हो गया, SiO2 कह देंगे उसको। सही है, तो जिस भी चीज़ का आपसे ऑक्साइड या हाइड्राइड पूछा जाए उसकी जगह आर की जगह आप वो एलिमेंट डाल दीजिए। तो ये इतना सिंपल फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इसने बताया था मेंडलीव में। लेकिन उसका जो क्लासिफिकेशन का बेसिस था वो था एटॉमिक मासेस पर। इसमें भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स है, तो इस पर कुछ क्वेश्चंस और इसके ड्रॉबैक्स कल की क्लास में देखता हूँ मैं। दूसरा, आप लोग प्रिपेयर रहिए कि जो आपका सैटरडे आ रहा है, सैटरडे को मैं आपका एक तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स का टेस्ट ले रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा आप मेरे को बता दीजिए, मैग्नेटिक इफेक्ट्स अभी हमारा कंप्लीट हुआ है। कार्बन, हाँ
आप मंडे को दे देना, मैं सैटरडे में चाह रहा हूँ इस हफ्ते एक टेस्ट तो होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो मैग्नेटिक इफेक्ट, साथ में कार्बन भी डाल दें, हो जाएंगे दोनों चैप्टर। अच्छा, और दूसरा ये बता दीजिए कि स्कूल अभी जा रहे हैं सभी बच्चे? 7 तक पेपर है। कब तक? 7 तक। 7 तक। मुझे लग रहा है 8 या 10 तारीख तक जाओगे आप स्कूल, फिर उसके बाद तो क्या जाना होगा? ऑनलाइन करवानी